subscribe to our channel and press the bell icon. Hello friends, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan. 11th English section 4 4.1 ड्रामा, इसका सेकंड पार्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सर चलिए शुरुआत करते हैं। अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ ड्रामा, यानी ड्रामे की एक मुख्तसर सी तारीख। इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ड्रामा थिएटर। Drama has its origin in folk theatre. We therefore cannot consider drama merely as a part of literature. Words are the medium of literature as an art, but drama is a multiple art using words, say, scenic effects, music, gestures of the actors, and the organizing talents of a producer. The dramatist must have players, a stage, and an audience. अब ड्रामा जो है इसकी फोक थिएटर यानी बहुत ही पुराने क़दीम तरीक़े से पेश की जाने वाले तरीक़े से अगर बुनियाद मिलती है तो ड्रामा को हम किसी लिटरेचर का पार्ट ही नहीं समझ सकते। इसके अलावा भी ड्रामा जो है एक किस्म का ज़रिया है जिसमें अलग अलग चीज़ें मल्टीपल आर्ट को पेश किया जाता है, जिसमें अल्फाज होते हैं, सीनरी होती है, इसमें म्यूज़िक यानी मौसीकी होती है और फ़नकारों के हाव भाव और उनका टैलेंट, प्रोड्यूसर का टैलेंट और ड्रामेटिस्ट के स्टेज पर पेश की जाने वाली चीज़ें सब की सब मिलकर बनती हैं। द बिगिनिंग ऑफ अ ड्रामा इन इंग्लैंड आर ऑब्सक्योर. There is evidence to believe that when the Romans were in England, they established vast amphitheaters for the production of plays, but when the Romans departed, the theatre departed with them. Then there were minstrels, people enjoyed their performances. Gradually, by the 10th century, the ritual of the plays that itself had something dramatic in it got extended into the rudiments of a play. Between the 13th and the 14th century, drama started having themes which were separated from religion. The words themselves were spoken in English. A longer dramatic script came into use and they were called miracle plays. Later, these religious dramas were the morality plays in which characters were of abstract vices and virtues. These were allegories. ड्रामे की शुरुआत जो है बहुत ही अजीब किस्म से हुई, ऑब्सक्योर किस्म की हुई इंग्लैंड में। इसके कुछ शवाहिद सबूत मिलते हैं जो हम यकीन करें तो जब रोमन लोगों ने इंग्लैंड पर अपनी हुकूमत क़ायम की थी और वहाँ पर छोटे छोटे एम्फी थिएटर्स क़ायम किए और वहाँ पर रोमन के प्लेज होते थे। उसके अलावा जब रोमन वहाँ से चले गए तो वहाँ पर जो मिनिस्टर्स थे या वहाँ के जो नवाब थे उन्होंने इन ड्रामों को जारी रखा। लोगों ने भी उसका बहुत ही ज़्यादा मज़ा उठाया और 10वीं सदी ईस्वी तक के ये प्ले जो थे ये रिचुअल्स थे यानी रस्मात बन चुकी थी। लेकिन आगे जाकर ये प्ले 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी में बहुत ही बढ़ने लगे। आगे जाकर स्पोकन इंग्लिश का ये हिस्सा बने और इसमें स्क्रिप्ट, ड्रामे की स्क्रिप्ट बढ़ने लगी। बाद में लोगों ने इससे मिरेकल प्लेज यानी जादुई ड्रामे कहना शुरू किया। कुछ लंबे ड्रामे भी पेश किए जाने लगे, कुछ मजहबी तौर पर और कुछ अखलाक़ी ड्रामे और अलग अलग किस्म के ड्रामे क़िस्से कहानियों के ज़रिए पेश किए जाने लगे। एलिज़ाबेथ एंड रेस्टोरेशन ड्रामा थिएटर. These secular morality plays have direct links with Elizabethan plays. The Renaissance imposed learned tradition, classical in depth, with themes of education, general moral problems, and secular politics. The plays had nothing to do with religion. There were examples of both comedy and tragedy. Thomas Kyd, Christopher Marlowe, and William Shakespeare are the prime dramatists of this era. It was Kyd who discovered how easily blank verse might be converted into a useful theatrical medium, which Shakespeare used brilliantly in all his plays. Tragedy developed in the hands of the Kyd and the Marlowe. Comedy had also produced beyond drastic humor, but by the 90s of the 16th century, the theatre in England was fully established, but complicated conditions governed the activities of the dramatist. अब ड्रामेटिस्ट की जो ड्रामास की शुरुआत हुई वो सेक्युलर मोरालिटी से हुई, अखलाक़ी ख़दरों के बढ़ने से, खुसूसन मलिका एलिज़ाबेथ के ज़माने में हुई 16वीं सदी ईस्वी में। उसके बाद में जो पुनर्जागरण का रेनेसेंस का दौर था उसमें बहुत सारे नए क़दीम रवायात को पेश किया गया। उसके अलावा उसे क्लासिकल डेप्थ देने की कोशिश की गई।
थीम्स ऑफ एजुकेशन, तालीम के कुछ नज़रियात पेश किए गए, और आम से अखलाक़ी पहलू सेकुलर पॉलिटिक्स को पेश किया गया। और इन ड्रामों का मज़हब से कोई लेना देना नहीं था। इन ड्रामों में बहुत सारे तंज़ मज़ा के कॉमेडी और बहुत सारे ट्रेजिडी के ड्रामे होते थे। थॉमस काइड और क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर, ये उस वक्त के बड़े ड्रामा निगार तस्वुर किए जाते हैं। काइड ने जो अपना ब्लैंक वर्ड्स का तरीक़ा ईजाद किया था, उसे सबसे बेहतर तरीके से विलियम शेक्सपियर ने पेश किया। उसके अलावा ट्रेजिडी के जो प्ले थे उसे काइड और मार्लो ने बड़ी आसानी से पेश किया। कॉमेडी जो है वो एक मज़ा का ज़रिया बन गया। 16वीं सदी ईस्वी में इंग्लैंड में ड्रामे को बड़ी तरक्की हुई और नई नई चीज़ें ड्रामाटिस्ट ने पेश करने की शुरुआत कर दी थी। The public theatre of the 16th century differed in many important ways from the modern theatre. It was open to sky without artificial lighting. The stage was a raised platform with the recess at the back supported by pillars. There was no curtain, and the main platform could be surrounded on three sides by the audience. Around the theatre there were galleries. In the 17th century, the enclosed theatre gained importance. There was increasing attention to scenic devices as theaters became private. पहले पब्लिक थिएटर हुआ करता था खुले आसमान के नीचे, कोई आर्टिफिशियल लाइटिंग की ज़रूरत नहीं, और एक बड़ा चबूतरा होता था जिस पर पिलर्स लगाकर पेश किए जाते थे ड्रामे। बाद में से तीन तरफ से लोग इसे देखते, कोई पर्दा ना होता। आगे जाकर ये तीनों तरफ से पेश किए जाने वाला ड्रामा एक बंद गैलरी में पेश किया जाने लगा, और उसके बाद 17वीं सदी में इसे बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल हो गई। Shakespearean era came into existence in the 16th century. To the public theatre, he wrote for the contemporary theatre, manipulating the Elizabethan stage with great resource and invention. But the genius of Shakespeare should not allow the rest of the drama of his age to be obscured. शेक्सपियर ने 16वीं सदी ईस्वी में अपने थिएटर, अपने ड्रामे लिखने की शुरुआत की, और वो एलिज़ाबेथ के ज़माने के जो ड्रामे थे उनसे थोड़ा सा वो मैनिपुलेट करके अलग करके लिखा करते। विलियम शेक्सपियर एक जीनियस थे जिन्होंने दूसरे तमाम चीज़ों को इजाज़त ही न दी कि वो गैर ज़रूरी चीज़ें उस वक्त ड्रामे में पेश कर सके। Contemporary to him was Ben Jonson, a classicist, a moralist, and a reformer of drama. In comedy, Johnson's genius is found to its best, and his influence was considerable. The restoration of dramatists leaned strongly upon him. अब इसमें विलियम शेक्सपियर के साथ में बेन जॉनसन ने भी बहुत सारे ड्रामे लिखे। वो एक क्लासिकल राइटर थे, अखलाक़ी क़दरों और ड्रामे के रिफॉर्म पर वो बहुत ज़ोर देते थे। जॉनसन ने कई सारी कॉमेडी भी लिखी। इसके अलावा ड्रामे को बेहतर मुकाम दिलाने में भी उनका बड़ा योगदान है। Closing of theatres by the Puritans in 1642 brought this greatest of all periods in the history of English drama to an end. With the Civil Wars, no theatre existed between 1642 to 1660. The next phase, which appeared after the Restoration, produced a very different kind of dramatic theatre. Dramatists like Chapman, Thomas, Middleton, Webster, and Dekker were at the forefront. जो प्यूरिटन्स यानी सफाई पसंद, ये उस वक्त मजहबी प्यूरिटन्स जो हुआ करते थे इंग्लैंड में, उन्होंने 1642 में इसके ख़िलाफ़ मुहिम चलाई और ड्रामों को बंद करने की कोशिश की। उसके बाद 1642 से 1660 के बीच में सिविल वार हुई। इंग्लैंड में सिविल वार की वजह से बहुत सारे थिएटर बंद हो गए, लेकिन उसके बाद का जो फेज़ आया उसमें चैपमैन, थॉमस मिडल्टन, वेबस्टर और डेकर जैसे लोग सामने आए जिन्होंने ड्रामे की पेशकश में अहम किरदार अदा किया। When Charles II came back with the restoration of 1660, the theatres were reopened. The restoration comedy achieved its peculiar excellence. Drama developed into class drama with upper class ethos. It lasted beyond this period into the first decade of the 18th century. Comedy in the 18th century declined into sentimentalism. It became comedy of manners. George Etheridge was its most important exponent. From such depths, the drama was rescued by Oliver Goldsmith and Richard Sheridan, with Sheridan
something of the brilliance of Restoration dialogue, written into comedy but with more genial atmosphere. The characters were firmly presented with clarity, reminiscent of Johnson but with no depth in Sheridan's world. No new interpretation of human nature in this way. He was near to Oscar Wilde than to Johnson. जब चार्ल्स दुअम दोबारा इंग्लैंड के बादशाह बने 1660 में उन्होंने थिएटर खोलने की इजाज़त दे दी और उसके बाद में कॉमेडी और ने अपने बहुत ही बुलंदी को पाया। कॉमेडी ड्रामों ने ड्रामा जो है लोअर क्लास अपर क्लास में बहुत ही जो पाई जाने वाली खलीज को बताता है, दूरियों को बताता है। ये तकरीबन पहली दहाई 18वीं सदी ईस्वी के फर्स्ट डिकेड तक चलने लगी। उसके बाद कॉमेडी 18वीं सदी ईस्वी में कम होते होते वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है ये इसमें तब्दील हो गई, जिसमें जॉर्ज ईथर्स का बहुत अहम रोल है। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा ओलिवर गोल्डस्मिथ और रिचर्ड शेरिडियन ने गहराई पैदा की। शेरिडियन ने बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से डायलॉग डिलीवरी और कॉमेडी को पेश करने का मिजाज सामने रखा। इसके अलावा वो जॉनसन के पेशकश के बेमुकाबले शेरिडियन के जो अल्फाज थे वो बहुत ही साफ़ और क्लियर हुआ करते थे और वो ह्यूमन नेचर को बहुत आसानी से पेश करते थे। उसके बाद में ऑस्कर वाइल्ड ने जॉनसन को रिप्लेस कर दिया और वो बेन जॉनसन से ज़्यादा बेहतर लिखने लगी। मॉडर्न ड्रामा थिएटर, अब जो जदीद ज़माना है थिएटर है वो किस तरीक़े का है। द मॉडर्न थिएटर विथ इट्स पिक्चर फ्रेम स्टेज, इट्स एक्ट्रेसेस टेकिंग फीमेल पार्ट्स, its movable scenery designed to create a visual image of the locale of each scene, and its artificial light was developed during the Restoration period. There is clear influence of France on theatre, the audience and the themes. अब मॉडर्न ड्रामा जो है वो विजुअल इमेज के साथ पेश किया जाने लगा, जिसमें आर्टिफिशियल लाइट वगैरह भी बेची क्लियर पेश की जाने लगी और इसमें फ्रांस के थिएटर का बहुत ज़्यादा किरदार नज़र आता है, उसकी छाप नज़र आती है थीम पर और ऑडियंस पर। The drama of the early 19th century was on the whole on the way to decline for many reasons. The theatre was home mainly to irregular spectacle, melodrama and farce. A simple external reason can be found in the monopoly held by the two houses, Covent Garden and Drury Lane, for the performance of serious drama. The audiences which gathered to the 19th century theatre had not the intelligence or the imagination of Elizabethan audience. The danger in the 19th century theatre was that, above all, it was unrelated to the life of the time. The changes in the structure of the society had so modified the human personality itself that a new interpretation was essential. अब 19वीं सदी ईस्वी में पेश किए जाने वाले ड्रामे में कई सारी वजूहात हैं। अब ये जो ड्रामा था ये इरेगुलर हो गया और मेलो ड्रामा हो गया, इसमें कई सारे गीत भी गाए जाने लगे। इसके अलावा दो हाउसेस की बहुत मोनोपोली हुआ करती थी, जैसे कवेंट गार्डन और ड्रूरी लेन, जो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते थे। इसके अलावा जो सामाइन है 19वीं सदी ईस्वी में वो एलिज़ाबेथ के ज़माने के सामाइन से मुख्तलिफ थे, वो उतने ज़्यादा ज़हीन न थे कि वो समझ सके। 19वीं सदी ईस्वी में जो है अनरिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा पेश की जाने लगी। सोसाइटी के स्ट्रक्चर को, ह्यूमन पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा ज़ोर देकर पेश किया जाने लगा। Ibsen, the great Norwegian dramatist of the 19th century, dominates the realistic drama. He developed modernist, realistic, social and psychological dramas like The Doll's House, Ghosts and The Enemy of the People. They are far more subtle in statecraft and profound in thought than anything in the modern English literature. But it was only George Bernard Shaw who was deeply influenced and affected by Ibsen's innovative contributions and experimentation. इब्सन ये नॉर्वे के रहने वाले एक बहुत ही ग्रेट ड्रामेटिस्ट हैं जो 19वीं सदी में हुए हैं और रियलिस्टिक ड्रामों को पेश करने में बहुत अहम किरदार रखते हैं। उन्हें मॉडर्निस्ट, रियलिस्टिक और सोशल साइकोलॉजिकल ड्रामा पेश करने में बहुत महारत हासिल थी। इसकी सबसे उम्दा मिसाल है द डॉल्स हाउस, घोस्ट एंड एनिमी ऑफ द पीपल।
अब इनके जो पेश किए जाने वाले ड्रामे थे वो बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज होते थे। इन्हीं ड्रामों को इंग्लिश थिएटर में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने पेश किया और उस पर एक्सपेरिमेंट भी किया और बेहतर कंट्रीब्यूशन किया। He was the most brilliant playwright of his times. He alone had understood the greatness of Ibsen, and he was determined that his own plays should also be a vehicle for ideas. The responsibility of elevation of the English drama to the brilliance of the Norwegian fell with the Oscar Wilde and George Bernard Shaw in the late 19th and early 20th century. इब्सन के जो ख़यालात थे उसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बहुत बेहतरी से पेश किया। वो इब्सन की जो ग्रेटनेस है उसे पहचानते थे और उनके आइडियाज़ को अपने तरीक़े से पेश करने की कोशिश करते थे और उन्होंने नए आइडियाज़ पेश करने की शुरुआत भी कर दी थी। इंग्लिश ड्रामे में नॉर्वे के तरीक़ों को लाने में बेहतर अच्छा काम किया था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। उसके अलावा ऑस्कर वाइल्ड ने, जो 20वीं सदी के अहम रहनुमा तस्वर किए जाते हैं। The 20th century showed a talent in the drama with which the 19th century could not compete. H. Granville Barker, John Glassworthy, St. John Irwin were some of the playwrights who explored contemporary problems. St. John Irwin had been associated with the group of Irish dramatists whose work was normally produced in the Abbey Theatre in Dublin. 20वीं सदी ईस्वी में और 19वीं सदी के आखिर में बहुत सी बेहतरीन ड्रामा निगार आए हैं, जैसे कि एच ग्रैनवेल बारकर, जॉन ग्लासवर्थी, सेंट जॉन इरविन। और इसके अलावा वो उस वक्त के अहम जो प्रॉब्लम्स थे, मसाइल तो उसे पेश करते थे। सेंट जॉन इरविन ये आयरिश ड्रामेटिस्ट से जुड़े हुए थे जो एबे थिएटर डबलिन जो आयरलैंड में है वहाँ के रहने वाले थे और वो उसे पेश करते थे। Much that is best in the modern drama in English developed from this movement. One of its originators was Lady Gregory with W.B. Yeats and J.M. Synge. They were the most important dramatists of this Irish revival who used a sense of tragic irony, a violent species of humor, and a rich and highly flavored language. अब इन चीज़ों को पेश करने में मॉडर्न ज़माने के इंग्लिश ड्रामा में सबसे अहम किरदार लेडी ग्रेगरी और W.B. ईट्स ने पेश किया है। इसके अलावा J.M. सिनेज ये भी बहुत अहम आयरिश ड्रामा निगार है। इसके अलावा इन्होंने अलग अलग किस्म के तंज़ व मज़ाह के तरीक़े लैंग्वेज की में पेश किए हैं। T.S. Eliot experimented with Greek tragedy in the early 40s of the 20th century. Other dramatists of the modern era, John Osborne, wrote on people who grew up after the Second World War. Kingsley Amis wrote about frustrated anti-establishment young people. Osborne's look back in anger brought a new vitality to the theatre scene. It was more a cultural phenomenon than the work of literature. Other important playwrights of the modern era include Anton Chekhov, Bartlett Brecht, Eugene O'Neill, Arthur Miller, Tennessee Williams, Eugene Ionesco, Samuel Beckett and Harold Pinter. अब इसमें कुछ अहम ड्रामा निगार भी आते हैं। तो T.S. Eliot ने ग्रीक ट्रेजिडी यानी यूनान की जो ट्रेजिक ड्रामे थे या उनके क़िस्से थे उसे ड्रामों में पेश किया। और जो नए ड्रामाटिस्ट थे उसमें जॉन ऑसबॉर्न ने बहुत अच्छा लिखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। किंग्सली एमिस ने किसी बहुत ही झिल्लाए हुए एंटी इस्टेब्लिशमेंट यंग नौजवानों के बारे में लिखा। ऑसबॉर्न ने लुक बैक इन एंगर के बारे में लिखा। लुक बैक इन एंगर ये थिएटर को एक नई जान लाती है। इट वॉज़ अ मोर अ कल्चरल फेनोमेनो दैन द वर्क ऑफ लिटरेचर। ये एक बहुत ही तहजीबी और अखलाक़ी चीज़ पेश करता है वर्क ऑफ लिटरेचर यानी अदब के वर्क के बजाय। अदर इम्पॉर्टेंट प्ले राइट्स ऑफ द मॉडर्न एरा इंक्लूड एंटन चिको, बैरलट बेचेट, यूगेन ओनाइल, आर्थर मिलर, टेनेस विलियम्स, यूगेन लॉनेस्को, सैमुअल बेकेट एंड हारल्ड पेंटर। ये तमाम के तमाम नए ज़माने के ड्रामा निगार हैं। अगला हिस्सा है इंडियन ड्रामा थिएटर, यानी इंडियन ड्रामा में थिएटर में किस तरीके के ड्रामे पेश किए जाते हैं। अब भारत में भी अर्लीस्ट सीड्स ऑफ मॉडर्न इंडियन ड्रामा कैन बी फाउंड इन द संस्कृत ड्रामा फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी AD
महाभाष्य by पतंजलि provides a feasible date for the beginning of theatre in India. सबसे पहले भारत में ड्रामे की जो शुरुआत हुई थी वो संस्कृत ड्रामे से हुई थी, जो पहली सदी ईस्वी में महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था। महाभाष्य नाम का ड्रामा ये पतंजलि ने लिखा था और उसके बाद में इंडिया में ड्रामा की शुरुआत हुई। द मेजर सोर्स ऑफ एविडेंस इज अ treatise on theatre नाट्य शास्त्र by भरत मुनि is the most complete work of dramatology in the ancient world. कदीम ज़माने में भारत की तरफ से ड्रामा को दी गई सबसे अहम किताब है जो भरत मुनि ने लिखी थी, ट्रीटीज ऑन थिएटर यानी नाट्य शास्त्र। It gives mythological account of the origin of theatre. Modern Indian drama, however, has influences from all over the world as well as Sanskrit and Urdu tradition. अब नए ज़माने के जो ड्रामा है इसमें बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया के असरात पाए जाते हैं, लेकिन पुराने ज़माने के जो ड्रामे पाए जाते थे उसमें बहुत सारी दंत कथाएँ, माइथोलॉजिकल चीज़ें, ख़याली चीज़ें भी होती थी। लेकिन जदीद ज़माने के ड्रामों में संस्कृत ड्रामा और उर्दू के अदब का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाया जाता है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।